Dear students, good morning to all of you. Let us start our today's topic. Our today's topic is language as a mean of communication and thinking. So, what is language? Why it is important for us to communicate our ideas, what we think? We shall discuss all about the language as a mean of communication and thinking. Language means communication of ideas, thoughts, feelings. We communicate our ideas, feelings and thoughts through language. Communication of thoughts from one person to another person means communication of ideas. It may be in spoken sentence or maybe in written form or maybe in printed books. It is only language which has broadened the field of mind. Communication involves interaction which encourages give and take. Communication means sharing of ideas and feelings in a mood of mutuality. Communication is the process of sharing of experiences. Effective communication is a two-way process. First is interaction, second one is feedback. So it should be in verbal form or it should be in a non-verbal form. There should be some basic assumptions of language. First one is systematic communication. Systematic communication means there should be direct link between teacher and taught. We share our ideas, thoughts, feelings. We interact with each other. There should be healthy discussion. We should use correct language. Direct interaction between teacher and taught. It should be in written form or in printed form. This process is two-way process. In which we should command our active vocabulary. We have good knowledge of structures, appropriate pronunciation, and we have the knowledge of accent and tones. Basic assumptions of communication and thinking. First is efficiency in oral reading and writing. Means one should be efficient in reading and writing. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई चीज़ को और वेदर आवर स्टूडेंट्स दे आर लिसनिंग टू अस, सो देयर शुड बी हेल्दी डिस्कशन. और हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं और ये वो क्या लिसन कर रहे हैं, ये हमें देखना है इसमें. और वी आर यूजिंग द correct use of language. We have the command over our vocabulary. Our pronunciation is appropriate or not. We have the knowledge of accents and tones. It should be compulsory. Next is components of communication. So there are four components of communication. First is encoder, second is message, third is medium, and fourth is receiver. What is encoder? Encoder means
speaker who speaks the words, who speak the message. Message means signal, but we are passing. Medium means channel of communication. हम क्या पास करना चाहते हैं, हम कौन सा मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं. एंड रिसीवर मीन्स डिकोडर, वट दे आर डिकोडिंग. वे क्या ग्रास्प कर रहे हैं, बच्चे क्या ग्रास्प कर रहे हैं और टीचर उन्हें क्या दे रहा है, वो सारी चीजें इसमें एनकोड हो रही है. अगला जो पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन साइकिल. एक साइकिल बना हुआ है कम्युनिकेशन का. हेल्दी कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए एक साइकिल बना हुआ है. वो साइकिल क्या है, दैट साइकिल इज, फर्स्ट इज टीचर. इन दिस प्रोसेस टीचर क्या करेगा, उसमें अपने आइडियाज टीचर एनकोड करेगा, ट्रांसमिट करेगा अपने आइडियाज. टीचर विल ट्रांसमिट एंड एनकोड हिज आइडियाज थ्रू मैसेज बाय द मीडियम ऑफ प्यूपिल्स. जो शिष्य, जो बच्चे हैं हमारे पास, उनके द्वारा वो उस मैसेज को पास करेगा. दे विल इंटरप्ट द एंड डिकोड, वे उसमें उसे इंटरप्रेट करेंगे. दे विल इंटरप्रेट, वो उसमें इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको डिकोड करेंगे. एंड दे विल ट्रांसमिट दैट मैसेज with the help of that medium and it will reaches at the teacher. वह द्वारा से शिक्षक के पास चला जाएगा वही मैसेज. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट शुड बी इन ओरल फॉर्म. मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन. इन दिस कम्युनिकेशन टीचर और एम्प्लॉयज, जिसको वेदर वी आर speaking or teaching communication channels. Oral communication means interaction in classroom teaching. टीचर जब बच्चों के साथ क्लासरूम टीचिंग में इंटरेक्शन कर रहा है ओरली, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. इट शुड बी वर्बल इंटरेक्शन एंड इट शुड बी बेस्ड अपॉन द lingual method. In this method, teacher passes the content with the help of some methods, some strategies, by using the teaching aids, and he will pass the content to our students. They will listen properly what the teacher is giving them. It should be a continuous process of communication. And next part is audiolingual method. That is the written form. Audiolingual method means that is the written form. Written communication ensures about the correct solution of problems. जब भी हम रिटर्न में कोई बात करते हैं तो जब हमने किसी चीज का सॉल्यूशन सही निकालना है तो हमें उसे रिटर्न फॉर्म में करना पड़ेगा. इट शुड बी बेस्ड अपॉन द कॉग्निटिव कोड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग. एज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज. उसमें रीडिंग की एक्टिविटीज भी होगी, राइटिंग की एक्टिविटीज भी होगी. इसमें टीचर क्या करेगा, राइट करेगा, रीड करेगा कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ मेथड्स एंड एड्स. और वो किसके पास जाएंगे, दे विल गो टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स उनको क्या करेगा, उन्हीं को रीड भी करेगा. स्टूडेंट्स जो टीचर राइट कर रहा है उनको स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, साथ साथ रीड कर रहा है और उसके बाद स्टूडेंट्स उसको अपनी नोटबुक पे जो है उसको राइट कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टीचर एंड टॉट इंटरेक्शन मीन्स कॉग्निटिव कोड मेथड. इसका एक और नाम भी है टीचर एंड टॉट इंटरेक्शन और कॉग्निटिव कोड मेथड. In writing, content comes first. That expression and sequences. In reading activities, generally communication is performed with the help of 4 activities. इसमें 4 एक्टिविटीज के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट इज स्पीकिंग, सेकंड वन इज लिसनिंग, थर्ड वन इज राइटिंग
and fourth one is reading. Without these इन एक्टिविटीज के बिना we can't become our communication healthy, we can't discuss our ideas, क्योंकि हमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये स्किल जो है इनके ऊपर हमें अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, तभी हम जो है वो अपना कम्युनिकेशन जो है वो उसको हेल्दी बना सकते हैं। बिकॉज यदि हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वी शुड विन द कॉन्फिडेंस ओवर सोशल गैदरिंग और ओवर द सोसाइटी। जब हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, हम कहीं बैठे हुए हैं, हम कहीं अपनी सोसाइटी में बैठे हुए हैं, 4 लोगों के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इफ आवर कम्युनिकेशन इज बेटर, यदि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इट विल हेल्प अस इन विनिंग कॉन्फिडेंस। सेकंड वन इज द स्पीकर फील्स हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एनकरेज्ड एंड डेवलप्स हिज पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी भी तभी अच्छी होगी अगर हमारा कॉन्फिडेंट जो है वो अच्छा होगा। और इट इज सिचुएशनल, ये सिचुएशनल होता है, ये मीनिंगफुल है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं, हम वहां पे बात करने का तरीका हमारा क्या है, हाउ वी आर टॉकिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज सिचुएशनल। द पर्सन हु सक्सेसफुली कम्युनिकेट हिज नोशंस, जो व्यक्ति अपने नोशंस को सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, हिज आइडियाज, उस अपने विचारों को, हिज थॉट्स टू अदर्स, ही फील एनकरेज्ड, सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट। तो वह अपने आप को एनकरेज भी फील करता है, सेटिस्फाई भी फील करता है और कॉन्फिडेंट भी फील करता है। एंड ही इज मोर प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन एंड मोर प्रैक्टिकल टाइप ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। So last, teaching learning of a language communication plays the wonderful and marvelous role in our life. When a learner develops the habit of right communication in him, he automatically and naturally becomes a good speaker. जब उसमें कम्युनिकेशन की आदत अच्छी होगी तो वो एक अच्छा स्पीकर भी, एक अच्छा वक्ता भी एक अच्छा बनेगा। एंड एन इम्प्रेसिव कन्वेयर ऑफ हिज आइडियाज एंड थॉट्स, और वो इम्प्रेसिव वे से अपने आइडियाज, अपने थॉट्स जो हैं वो कन्वे कर पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक था, इट इज़ ऑब्वियसली द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज DLED फर्स्ट ईयर, पेपर 5 जो है हमारा, उसके ऊपर जो हम आज डिस्कस कर रहे थे, लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। तो वेरी मच थैंक्स ऑफ यू ऑल। माई सेल्फ दिग्विजय मल्होत्रा, लेक्चरर, डाइट जुखाला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।